Now the board is visible to all of you. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yesterday we are doing question number 6. At that time our class timing has finished. So we start now question number 6. Otherwise you are completed. Ma'am, not completed. Okay. Okay. See question number 6. If the perimeter of a semicircular park is 72 meter, semicircular park. See, I have drawn small Half circle. half circle. I have drawn small picture because board is small. See, this is 2r. Yesterday we have already told, and this part is, what is its length? Pi r. Then what is its perimeter of the semicircle? 2r plus pi r. 2r. At first I am writing here perimeter of semicircle. Perimeter of semicircle. How much is given? 72 meter. 72 meter. What is its formula? Perimeter of semicircle 2r plus pi r is equal to 72. Yes? Yes or no? Yes, pi r plus d हो सकता है. हाँ, पाई प्लस डी हो सकता है. तो हमको अभी आर निकालना है, इसीलिए हम आर ले रहे हैं. डी भी, ये 2r भी डी के साथ सेम है, बिल्कुल बराबर है. देन आर इंटू कॉमन ले आई हूँ आर. ये 2r इसीलिए लिख रही हूँ. देखो यहाँ पे भी r है, तो टेकिंग r एज कॉमन, 2 plus r is equal to 72. Then r is equal to how much? 72 divided by 2 plus pi. Understood? यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. एक सेकेंड. Now, एक सेकेंड. हाँ. Now we will solve this one to find out the value of r, because the question has asked find the its area and radius. of radius find out करेंगे. See, r is equal to 72 divided by 2 plus what is the value of pi? pi का value है 22 divided by 7. Yes or no? Then 72 divided by 2 plus 22 by 7. We have to add 7. 7 2s are 14. You know how to add in fraction? Yes or no? This much. Then 72 divided by 20. 36 by 7. Yes. Then 72 into 7 by 36. देखो कट जाएगा. 36 1 जार, 36 2 जार इज इक्वल टू 7 into 2 14. सेंटीमीटर और मीटर इज गिवन. आई थिंक मीटर. देन 14 मीटर हो गया आपका रेडियस. ये भी दिया है. इट इज वन आंसर. सेकेंड वन वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया. अब हम लोग को मिल गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर. आर इज इक्वल टू 14 मीटर. दिस इज वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. Everybody should understand this very clearly. किसको यहाँ तक समझ में नहीं आया तो पूछो. Everybody understood? Yes, ma'am. अभी हमको r का वैल्यू मिल गया. Now we can find out the area of the circle. Here I am writing. Okay, आप इसके नीचे लिखिएगा. I am writing here. Area of the circle is equal to pi r square. Then what is the value of pi? 22 by 7 into r value 14. 14 into 14. Okay. 2 cut गया. Then 22 into 2 44. Yes, 308 meter square. It is also
अनदर आंसर. ओके, एक आंसर आपको दिया था फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेडियस एंड अदर वन इज फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सर्कल. एवरीबॉडी अंडरस्टूड? राइट डाउन इन योर कॉपी. If have you Yesterday's homework now. हाँ, नो यस्टरडे होमवर्क ये नहीं था. लिसन, ये होमवर्क नहीं था, ये जस्ट मैंने आधा तक की थी, तभी हम लोग का टाइम फिनिश हो गया था, कट गया था. दैट्स व्हाई होमवर्क इसके बाद 8 और 9 आई हैव गिवन. हैव यू डन इट? हाँ, हम 7 और 8 आप दी थी. हाँ 7 और 8 आई हैव गिवन. हैव यू डन? यस मैम. No, ma'am. मैम 8 नंबर नहीं समझ में आया. 8 नंबर. ओके, Yes, इसके ma'am. बाद 8 लिखो. Shall I write this one? Everybody completed. Yes, ma'am. Okay. Next, we will do question number 8. Each question you do practice in your home. 1 time, 2 time, 3 time. Okay. This is very much important questions. Now, Okay, ma'am. okay, very good. Then question number 8. What the question is given? Find the area of the square that can be inscribed in a circle of radius 8 centimeter. Inscribed means इसके अंदर में है. Okay, एक सर्कल के अंदर, this is one circle, उसके radius is given 8 centimeter. Suppose this is center and one square is given. Inscribed means इसके अंदर एक आपका स्क्वायर है and this is the center. If I join this one like this, अच्छा वाला है. is it visible to all of you? This is center O. Yes, ma'am. Please mute yourself if there is any sound coming. Please mute yourself. O A B C D. Okay. OA is equal to OC is equal to OB is equal to OD. These are the radius of the circle. Okay. How much centimeter is given? 8 centimeter. This is 8. This is 8. 8 and 8. Okay. If I join this is the diagonal of this square and BD and AC are the diagonals of the square. अब सर्कस में देना चाहिए. किसका वहाँ से साउंड आ रहा है? प्लीज म्यूट योरसेल्फ, अदरवाइज आई विल म्यूट ऑल ऑफ यू. अगर आवाज आ रहा है इतना तो आपके अंदर सेंस है ना, यू म्यूट योरसेल्फ. यू सी, अभी यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं? मैम आ गया. उसके बाद हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ द स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक साइड हमको निकालना पड़ेगा, बिकॉज साइड इनटू साइड इक्वल टू एरिया. ओके, एक साइड, ये साइड निकालने के लिए हम देखो, जब एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को इंटरसेक्ट करता है, इट मेक्स 90 डिग्री. दिस इज वन थ्योरम इज देयर. ये सब 90 डिग्री है. ओके, if this is 90 degree and this is B and this is P means perpendicular, this is base, then you can find out the hypotenuse AB in triangle AOB. AB square is equal to AO square plus OB square. AO square plus OB square. AO equal to 8, OB also 8. 8 square plus 8 square is equal to 64 plus 64. 128. Then AB is equal to how much? Root over of 128. Understood up to that point? समझ में आया? यस मैम. मैम एक बार फिर से समझा दीजिए. मैम एरिया ऑफ स्क्वायर मैम 128 सेंटीमीटर स्क्वायर. हाँ, अभी रुको, एक मिनट साइलेंट रहो, हम अच्छे
अच्छे से समझा रहे हैं। आपको क्वेश्चन में दिया है एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड मीन्स उसके अंदर एक स्क्वायर है। ओके, लाइक दिस आई हैव ड्रॉन इन फिगर। ओके, और ये ओ हो गया आपका सर्कल का सेंटर, और ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी आर सेम because these are all the radius of the circle. Okay, or we can say radius of the circle. This is 8, this is also 8, 8, 8. देखो, अब one theorem is there. If two diagonals are intersect with each other, एक दूसरे को अगर intersect करते हैं, then it will make 90 degree at the intersecting point. ये जो इंटरसेक्ट एक दूसरे को किया, यहाँ पे हर एक एंगल आपको 90 डिग्री ओके मिलेगा। इफ इट इज 90 डिग्री देन यू सी दिस ट्राइंगल, कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, ए ओ बी लो, या फिर ए ओ डी, या फिर सी ओ डी, या फिर सी ओ बी, एनी वन ट्राइंगल यू कैन टेक। All triangles are right angled triangle. You know, according to Pythagoras theorem, p square plus b square is equal to h square. Okay, suppose I am taking one triangle AOB. AOB, this is B and this is P, this is B base and this is P perpendicular and this is the hypotenuse H. Okay, then h square equal to, you know, h square is equal to p square plus b square. h here क्या है? ab. ab square is equal to ao square plus ob square, that is 8 square plus 8 square. 64 plus 64 128. ab equal to root over of 128. We can't find out the root over of 128. इसको ऐसे ही रहने दो. Okay, ab means this is the one side of the square. Okay, now we can find out area of the given square. Area of the given square is equal to side into side, या फिर we can say AB into AB, that is root over of 128 into root over of 128. We can write it 128 into 128 under the root over is equal to 128 square meter or centimeter? Centimeter. Centimeter. Yes. Understood everybody? Excuse me, ma'am. हाँ. Excuse me, ma'am. Yes. I will make it from another way. Ma'am, I have written radius of circle R equals to 8 centimeter. Then diameter of circle D equals to 2R into 2 into 8 Yes, yes. equals to 16 centimeter square. हाँ. Since square is inscribed in circle, therefore diagonal of this square equals to diameter of circle. Now area of square equals to diagonal square upon 2 equals to 16 Yes, square by yes. 2 and Yes, very 256 good. by 2 equals to 128 cm This square. is one method. I am talking also other method. Area of square is equal to other method. If diagonal is given, okay, diagonal square divided by 2. Okay, this is one formula. Diagonal, you know, this one. Okay, that is 8 plus 8, 16. 16 square divided by 2. 256 divided by 2 is equal to 128. This method you are talking. Okay? Yes, ma'am. हाँ, ये other method I am writing here. I am just going to discuss about that. Okay, you are telling. Very good. This method also you can use. Okay? दोनों मेथड से आपको जो मेथड इजी लगे आप उसको बना सकते हैं. Now write it down. Everybody clear about that? Are you getting my point, everybody? मैम लास्ट में जो आपका आंसर आया है वो स्क्वायर रूट के अंदर में नहीं होगा. किसमें? सेकंड मेथड, अदर मेथड. कौन सा मेथड? मैम फर्स्ट मेथड. बेटा कौन सा मेथड के बारे में आप बोल रहे हैं? अदर मेथड. मैम फर्स्ट मेथड में जो आपका आंसर है 128 स्क्वायर सेंटीमीटर. हाँ, वो स्क्वायर रूट उसको मैंने स्क्वायर रूट के
वेट, आप इसको इसके अंदर नहीं है, देखो ये दोनों है ना, तो दोनों का स्क्वायर मीन्स उसका रूट निकालेंगे तो एक को लिखेंगे ना, इस यहाँ पे लिख देती हूँ आपको अगर कंफ्यूजन है तो 128 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये है आपका आंसर। उसको स्क्वायर रूट में नहीं लिखना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं ना हम, एक साथ इसको लिख दिया आपका डाउट क्लियर होने के लिए। 128 इंटू 128 दोनों का अंडर रूट ओवर कर दिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नाउ क्लियर? Yes, ma'am. Shall I write this one? Complete it. Yes, ma'am. Now, completed. Shall I write? Yes, ma'am. Okay. Then question number 8 completed. Then 7 and 8 हो गया। 9, question number 9. Okay. Question number 9. What the question has said? The diameter of a circular park is 42 meter or 3.5 meter wide path runs around it from inside. Find the cost of paving the path at rupees 2 per square meter. At first, you draw a circular park. And its diameter is given d equal to 42 meter. 42 meter. What is its radius? Radius equal to 42 by 2, that is 21 meter. And the 3.5 meter wide path runs around it from inside. This path distance is given 3.5 meter. Suppose this is capital R, you write down. This capital R equal to 21 meter. Okay. Then small radius, inner radius we can say. Inner radius will be how much? यहाँ से यहाँ तक distance कितना था? 21. In between आपका 3.5 meter this length, or we can say this is the path of the length. Then what is its inner radius? Inner radius कितना होगा? Small r equal to 21 minus 3.5. Yes or no? That is 17. Yes, ma'am. हाँ 17 5 point meter. Small r ये हो गया आपका capital R. And this is small r equal to 17.5 meter. See the figure. You have to draw the figure. आपको बड़ा वाला सर्कल का डायमीटर दिया हुआ था, जहां से we have to find out the radius. And one path inside में आपका 3.5 width का एक path दिया। हाँ Excuse me, ma'am, उसका length 3 meter है, 3.5 नहीं है। 3 है। Yes, ma'am. मेरे पास जो पुराना बुक है ना बेटा 3.5 दिया है, तो फिर हम 3 कर देते हैं इसको। 3 दिया है ना आपका बुक में? Yes, ma'am. 3 ओके, ये बुक में 3.5 दिया है। Yes, ma'am. ओके ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 मीटर ओके, यू सब्ट्रैक्ट 3 दैट इज 18 मीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली नंबर में डिफरेंस है। बाकी क्वेश्चन सेम है ना जो हम पढ़ रहे हैं? Yes, ma'am. ओके देन आपका इसका रेडियस मिल गया इनर सर्कल का, देन आउटर सर्कल का भी आपको रेडियस मिल गया। वी कैन फाइंड आउट
द एरिया ऑफ बिग सर्कल और एरिया ऑफ इनर सर्कल दोनों का एरिया निकालेंगे और उसका जो एरिया ऑफ द पाथ निकालेंगे दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, है कि नहीं। एट फर्स्ट राइट डाउन एरिया ऑफ आउटर सर्कल और बिग सर्कल, जो भी आप लिखे, आउटर सर्कल इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7, आर इक्वल टू 21 इंटू 21, कितना हो रहा है मल्टीप्लाई करके बताओ, 66 इंटू 21, हाउ मच, आप मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ, 66 इंटू 21। नेक्स्ट हो गया आपका एरिया मैम 1386, हाँ 1386, 1386, कोई एक बोलो ना जी, 86 मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ एरिया ऑफ इनर सर्कल, एरिया ऑफ इनर सर्कल is equal to pi small r square is equal to 22/7, small r equal to 18 into 18। अब ये तो कटेगा नहीं, कितना आ रहा है इसका भी बताओ। देन एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू 1386 माइनस, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ मैम ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मेरे बुक में इसका जो डायमीटर है वो तो 24 मीटर दिया हुआ है। मैम मेरे में भी कितना दिया है ये मैम 24 मीटर दिया हुआ ये है। 24 यस दिया मैम, है। 24 अच्छा मीटर। एक मिनट बेटा 24 सुनो, मीटर है। अभी इसको लिखो मत, आपको खाली समझ जाओ कि क्या करना है, आपका जो दिया हुआ है ना उसको करना है। ये 24 दिया है, 24, यस मैम, तो ये हो गया आपका 12 हो गया। देन ये 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9 हो गया। आपका तो आसान हो गया, ये बड़ा बड़ा नंबर था। ओके, तब शुरू से क्यों नहीं बता रहे हैं आप लोग, हाँ खाली एक बताए। मैम हम नहीं देखे मैम, हम अभी नोटिस किए थे। हाँ मेरे पास जो पुराना बुक है ना, जो लिखा हुआ है हम उसके हिसाब से हम इसका मल्टीप्लिकेशन भी करके रख लेते हैं आपको आसान तरीके से हम समझाने के लिए, इसीलिए ये सब अलग नंबर आ जाता है। फिर देखो ये हो गया, अगर ये 12 लिख दो यहाँ पर 12, ये हो गया आपका 9। ओके, नाउ एरिया ऑफ आउटर सर्कल हो गया पाई इंटू 12 स्क्वायर। अब ये हो गया एरिया ऑफ द इनर सर्कल हो गया पाई इंटू 9 स्क्वायर, इतना ही अभी लिख देती हूँ। नेक्स्ट एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू, डायरेक्टली हम कर लेते हैं अभी, पाई इंटू 12 स्क्वायर माइनस पाई इंटू 9 स्क्वायर, टेकिंग कॉमन पाई 12 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7 इंटू 12 प्लस 9 हो गया 21 इंटू 3। ये एक वन मेथड है, इसका आगे वाले क्लास में आपको पता चलेगा। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके हम लिख दिए हैं, बट आप 12 इंटू 12 9 इंटू 9 करके लिखिएगा। ओके, देन 3 9 जर 9 2 जर 18 1 9 2 जर 18 1 19 198 स्क्वायर सेंटीमीटर या मीटर, इतना आएगा आंसर। मैम सही है। अब क्या लेना है आपको? ओके मैम हाँ मैम एरिया तो ये वाला प्रोसेस है मैम, एक और प्रोसेस हो सकता है पाई मैम, और उसके बाद 12 प्लस एक बार जो 12 आया है और प्लस एक बार 9 कर दे और एक बार माइनस कर दे और फिर वही मल्टीप्लाई हम कर करके दे। लिखे हैं बेटा, 12 प्लस 9 करके 21, देन 12 माइनस 9 करके 3 किए हैं, देख रहे हो ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही कर दिए हैं ताकि आपको आसान हो जाएगा। ये मुंह में आपका
मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, आपको कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद आपको दिया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग। ओके, नाउ लिखो कॉस्ट ऑफ पेविंग इज इक्वल टू 2 रुपीज दिया है कि और दूसरा कुछ दिया है आपका बुक में? 2 रुपीज? नो मैम 25 25 रुपीज। 25 मैम आंसर आएगा मैम 450 4,950 रुपीज। यस मैम। ओके, हो गया। अभी क्वेश्चन मेरा बुक में कुछ और दिया है, आपका लोग का बुक में कुछ और है, ये पुराना बुक है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ, मैम एरिया ऑफ द पाथ जो आपने लिखा है फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए ना। कहाँ से? यहाँ से? मैम एरिया ऑफ द पाथ, मैम एरिया ऑफ द पाथ। हाँ, एरिया पाथ इक्वल टू पाई इंटू, देखो बड़ा वाला आउटर स्क्वायर का एरिया माइनस छोटा वाला स्क्वायर का एरिया, दोनों को ये बड़ा सा इसका एरिया से हम छोटा वाला एरिया का माइनस कर देंगे ताकि हम लोग का ये पाथ का एरिया निकल जाएगा। ओके, देन पाई इंटू 12 स्क्वायर, ये बड़ा वाला एरिया है, पाई इंटू 12 स्क्वायर माइनस पाई इंटू 9 स्क्वायर, ये 9 स्क्वायर है, ऐसे ही अच्छे से लिखिएगा। देन टेकिंग पाई कॉमन, 12 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, दोनों में पाई है तो पाई को बाहर ले जाओ, 12 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, ये आपका एक फॉर्मूला है 12 प्लस 9 12 माइनस 9, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लिख दिए हैं। तो 22/7 इंटू 21 इंटू 3, 12 प्लस 9 इज इक्वल टू 21, 12 माइनस 9 is equal to 3. Okay, then 7 3s are 21, 3 into 3 9 into 22 198 square meter. After that, cost of paving is equal to per square meter 25 rupees. 25 into 198 is equal to 4,950 rupees. Now clear about that? Yes ma'am. यस मैम। Yes ma'am. Write down. Yes. Note it down, everybody. Ma'am paving means? Paving means इसका paving means to make या फिर डिजाइन करना है by using bricks और टाइल्स और मार्बल्स, उसको बोलते हैं पेविंग करना। जो फर्श पे या फ्लोर पे हम लोग टाइल डालते हैं या मार्बल्स डालते हैं या फिर ईंट से बड़ा वाला ब्रिक यूज करके जो करते हैं उसको बोलते हैं पेविंग। Thank you ma'am. Next, shall I write this one? Yes ma'am. यस मैम। Yes ma'am. Okay. Next, question number 9 completed. Then 10. Question number 10. This type of figure is given. Yes? A paper is in the form of a rectangle PQRS. यही दिया है ना आपका बुक में? ना दूसरा कुछ है? Ma'am please repeat. मैम यही दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। ये वाला मैम यही है। यही है ना? ओके, ड्रॉ द फिगर PQRS. PQRS. Okay, this one semicircle, this is also semicircle, and PQRS is a rectangle is given. PQ 10 मैम पेज नंबर क्या है? पेज नंबर Page number बुक है 221. बेटा, 221। आपका बुक में कुछ अलग होगा। एंड दिस इज No No ma'am. ma'am same. सेम है ना? अच्छा ठीक। दिस इज 7 मीटर, ये आपका 7 मीटर दिया है और लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर एंड दिस इज 7 सेंटीमीटर। देन two semicircular portion with QR and PS, each diameters are cut off.
फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। ओके, अगर ये सेमी सर्कल को हम कट कर देंगे यहाँ से और इधर से, और जो पार्ट बचा, देखो आई एम सेडिंग हियर, दिस पार्ट का हम एरिया निकालेंगे। क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया? PQRS is a Yes, rectangle. ma'am. In this rectangle, there are two semicircular part is given in which diameter is given 7 centimeter. और जो आपका रेक्टेंगल है उसका लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ is given 7 centimeter. Then we have to find out the area of the remaining part. Remaining part means excluding the semicircle. Two semicircle मिलकर क्या बनेगा? एक तो सर्कल बनेगा कि नहीं? Yes, ma'am. यस, तो हम अगर एक सर्कल का एरिया निकाल देंगे और फिर वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। Area of the हाँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ वन सर्कल, देन वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट और एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। yes, ma'am. Okay, now you write down area of a rectangle PQRS is equal to L into B. L equal to 10 into 7 is equal to 70 square centimeter. Okay, now area of the circle, एक सर्कल का हम निकाल देंगे डायरेक्टली। एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे r इज इक्वल टू हाउ मच? d इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देन r इक्वल टू 7/2, यस 3.5 सेंटीमीटर। देन यू राइट डाउन हियर 22/7 into 3.5 into 3.5. ओके, now then how much? कितना हो रहा है? इज इक्वल टू 38.5, 7 से कट जाएगा, 7 5 जार 0.5 इज इक्वल टू हाउ मच इट कम्स? 38.5. 30 you multiply 38.5 centimeter square. Okay. Okay, ma'am. Okay. Now area of remaining part, इधर लिख रही हूँ, छोटा छोटा करके लिख देती हूँ। एरिया ऑफ remaining part is equal to area of the rectangle minus area of the circle, means 70 minus 38.5 is equal to how much? 31.50. हाँ, 31.5 square centimeter. That is your answer. Everybody clear about the question? Understood everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Okay, now note it down. Completed. Yes, ma'am. Hey, who is doing this? Shall I write this one? Yes, ma'am. Okay. Now, question number 11. Say, a horse is tied to a pole with 21 meter long string. Suppose this is one pole, ये point है, इस पे एक पोल है, इसमें एक हॉर्स को बांधे हैं एक स्ट्रिंग से, रस्सी से। कितना मीटर लॉन्ग का स्ट्रिंग है? 21 मीटर लॉन्ग। सपोज लाइक दिस।
21 meter. That is its radius. R equal to 21 meter. Find the area where the horse can graze. कहाँ तक आपका हॉर्स जाकर घास खा रहा है. इसका मतलब देखो, हॉर्स को अगर बांधा गया है 21 मीटर स्ट्रिंग पे और यहाँ से आप ये पूरा एरिया, इतना ही एरिया में वो घास खा सकता है. ओके, तो इसका आप एरिया फाइंड आउट करिएगा. R इक्वल टू 21 मीटर एच गिवन. देन एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 22 by 7 into 21 into 21. 7 3 jar 21. Then you multiply 1386. 1386 square meter. ये बहुत इजी क्वेश्चन है. आपको एक हॉर्स बंधा गया है एक पोल पर जिसका स्ट्रिंग लंबाई है उसका रस्सी का 21 मीटर और कितना जगह पर वो घास खा पा रहा है. इसका मतलब है वो जो सर्कुलर रीजियन आ रहा है उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है. ओके, एवरीबॉडी क्लियर? Yes, ma'am. Okay, ma'am. नोट डाउन इट. Have you any doubt? No. No, ma'am. No. Okay. Very good. Then question number 13. 13 हम लिख रहे हैं because each question is given. One thing I want to discuss. और जो क्वेश्चन बचेगा आपके लिए होमवर्क होगा. Concentric circle किससे कहते हैं? You should know what is concentric circle. मैम जिसका मैम सेंटर सेम हो. वेरी गुड, एक्सलेंट. कॉन्सेंट्रिक सर्कल अगर क्वेश्चन आता है तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मींस एक सेंटर होगा और बहुत सारे सर्कल्स बनेगा. देखो इस टाइप का आपका होता है. सो मेनी सर्कल्स विथ ए कॉमन सेंटर, दैट सर्कल्स आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. ओके, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है. 12 करें या फिर 13? कौन सा क्वेश्चन? पहले 12 बता दीजिए. 12. Shall I write this one? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Question number. An iron washer is made by cutting out from a circular plate of radius 5 cm and a concentric circular plate of radius 2 cm. देखो एक सर्कल आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर रेडियस. दिस इज सेंटर and this is 5 cm. And other circle has given concentric circular plate means same center पे और एक रेडियस 2 सेंटीमीटर का अदर सर्कल आल्सो गिवन. दैट इज ये हो गया आपका, दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 2 सेंटीमीटर. सेंटर इज सेम. ओके, नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द वॉशर. यही बीच से एक ठो पतला वॉशर कट के लिया गया है. ये इतना सपोज लिया गया है वॉशर बनाने के लिए. देन वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द वॉशर. ओके, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं?